Yes, before we dive in practice session, I'd like to communicate about the work which I gave yesterday. कुछ मैंने काम दिया था तो उस पर बात कर लेते हैं. तो कुछ लोगों ने कंप्लीट भी किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो, ऐसा भी हो सकता है. तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड यस्टरडेज होमवर्क, जो भी टास्क थे रिसर्च बेस्ड एंड ऑल. कितने लोगों ने किया है क्या सर? यस्टरडेज वर्क? कितने लोगों ने किया है? सावित्री जी, काइंडली एक्सप्लेन व्हाट यू डन ऑन कैमरा. Okay, sir. Sir, I have told about the difference between talk to and talk with. Talk to implies with one person, primarily giving information, and a second person may be involved or not may be involved. Means he may be passive listener, but when we use talk with, then there both person will be active. Means it will be communicate with two active persons. It will be This communicated is talk. with. Yes, sir. It will be communicated with. आपने कहा it will communicate with. पता नहीं कुछ ऐसे बोला था, it will be. And the next one, communicate to and communicate with. Hmm. Same thing implies with. I think, sir, both are same talk to and talk with. But communicate means there. I think any specific topic will be communicated, and in talk with, we can talk in general terms, any general topics. But concepts are same. I think. Okay, thanks for your representation. I would ask others as well that they have prepared or not. Okay, who would else answer? Yes, saying something. पहले तो सब लोग कैमरा ऑन कीजिएगा अपना अपना. दीपा जी, कमला जी, अतुल जी. कमला जी, आपका जो कंप्लेंट था वो मैं भूल गया, आप कैमरा ऑन कीजिए. के एंड अतुल जी, प्रतीक्षा जी, प्रसाद जी, अतुल जी. Everyone is requested to turn on camera. Priyanshi ji, have you prepared on this Yes, the sir. the work which was given to you yesterday? बताइए. Yes, sir. I have prepared. Yes, what you've done Okay, sir. on which topics? सबको explain कीजिएगा. Yes. Okay. So you gave to search the difference between talk to and talk with, and communicate to and communicate with. So to implies one-way communication, just sending the information to a person. Like for example, the coach communicated to the player the game plan. So here coach is instructing. And with implies two-way communication, like exchanging information. Example, she communicated her doctor about her illness. So patient and doctor here exchanging the information. And secondly, you gave why don't we use to before home. So here home is the adverb. So there is no need to add to in the sentence. And what if home So is used as noun? if I give you example, I am going to my home. So here we can use to, because here a home is used as a noun. Yes. And My, how would we yes, recognize here? Because my is used, right? yes, my is a noun. No, my is not noun. Like before a noun, we use an adjective or possessive. But directly, if you are using you said, I go. Like for example, I'm giving another example. I go slowly. So what is slowly here? Can anyone recognize slowly? Yes, sir. Adverb. Adverb. Yes, Yes. sir. Okay. Adverb. I will share a kind of exercise or a picture regarding parts of speech. तो एडवर्ब है यहाँ पे. तो जहां पर वर्ब के बाद वर्ब के बारे में जो डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है, वो एडवर्ब कहलाता है. तो आई गो स्लोली, स्लोली इज एडवर्ब. तो आई गो होम, टू इज नॉट यूज बिकॉज होम इज एडवर्ब. अब मैं बोलता हूँ आई गो और मैं लगाता हूँ माई होम, तो माई आ गया. इसका मतलब माई तो एडवर्ब है नहीं, माई तो पोसेसिव केस होता है.
आई का, है ना, पोजेशन शो करता है, रिलेशन शो करता हाँ है। तो इसलिए माई के बाद जो आएगा वो जनरली नाउन होगा हमारा, राइट। तो होम हमारा नाउन है, इसलिए हम रिकॉग्नाइज कर लिया, यस। तो होम नाउन भी होता है, और जनरल केस में होम को हम एडवर्ब, एज अ एडवर्ब यूज करते हैं, इसलिए वहां पे टू नहीं आता। ओके, गुड। अच्छा एक बात तो बताइए, आई एम होम या आई एम एट होम, इन दोनों में से बोथ ऑफ देम आर करेक्ट या फिर वन ऑफ देम आर करेक्ट, व्हाट इज योर रीजन? प्रियांशी जी। सर सेकंड वाला करेक्ट है। But second will be correct. I am at home. Second one is correct, sir. At, आई एम एट, because आई एम एट, it is home is the place where we are emotionally connected. So it is the specific place. So I am at my home. So here we are here we are looking the specification of the sentence. Like if you will use house, then house is not the specific. Like house is a building and structure. Home is the place where we are emotionally connected. okay. So So it is. my question, another question is that, kindly think, everyone is welcome to answer on this. My question is that you told like I am at home is correct. So let me know, are you saying that I am home is incorrect? Yes, sir, incorrect. No, sir. No, sir. Hmm. Atul sir Sir, is please saying, repeat my question. Sir, I think you are saying Sir, it I is am in incorrect, sir, home. because sir, I am home means मैं खुद home हो गया ना सर, मैं खुद ही घर हूँ। नहीं, I think अभी confusion है। Jaswant sir, you are saying I am in home. नो, आई एम एट होम, इन नहीं लगाते, मतलब एट प्लेस का है ना पर्टिकुलर, बेसिकली घर में, ठीक है। हाँ, ऐसा हाउस वगैरह होता है तो वहां पे भी लग जाता है इन। रूम की बात हो रही है, अंदर है तो। होम का मतलब आप जैसे मैं घर पूरा, आप आंगन में भी बैठे हैं तो वो घर ही है आपका, इसलिए वहां पे एट लगाते हैं, इन नहीं लगाते। तो आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पहले तो आपने मुझे समझाया, ठीक है, आप लोगों ने ही मुझे समझाया अभी, कि होम जो है, अभी टू वाला कॉन्सेप्ट समझाया कि टू नहीं लगाते क्योंकि वो एडवर्ब है, ठीक है। और आपने कहा कि टू लगाते हैं जब वो नाउन के रूप में आता है, मैं एग्री कर गया, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट स्टेटमेंट व्हेन यू टोल्ड कि होम व्हेन यूज्ड एज एडवर्ब वी डू नॉट यूज टू, एंड व्हेन यूज्ड एज नाउन वी यूज टू, करेक्ट, आई एग्री। बट नाउ आई एम आस्किंग यू that if I am saying I am home and if I am saying I am at home, then which one would be correct? Now you are saying to me like I am at home is correct, and you are saying that I am at home is incorrect. So Atul ji only said that I am at home is correct. So I would ask the clarification from Atul ji. How would you justify this, Atul ji? Let me know. Atul ji, please turn on the Sir, camera if possible. sir. Yes. If we are saying that I am at home, it means I am at home. I am at place, Yes. which is home. Yes. And Home. Yes. if I am saying I am home, it is correct if we personify it. The और house आई एम says होम that का I am मतलब home. तो ये हो गया ना, मैं घर हूँ। Wait, Mayank, wait. Let him complete. Wait a moment. Yes, second point was missed, Atul ji. हाँ सर, अगर हम उसको पर्सोनिफाई करेंगे कि घर बता रहा है कि मैं घर हूँ, और वो अपनी मतलब डेफिनेशन बताएगा, अपने बारे में हम्म बता रहा है, जैसे कि एनिमेस वगैरह में कहते हैं, स्टार्टिंग में हम्म। बताता है, यस यस तो वो यस। पर्सोनिफिकेशन में सही हो जाएगा। हम्म। अच्छा, ये एक अभी काम कीजिए, आप लोग एक काम कीजिए, अभी आई एम होम वर्सेस आई एम एट होम, ऐसा कुछ टाइप कीजिएगा गूगल पे, ऐसा कुछ टाइप करके देखिए, दिस इज द वर्क फॉर नाउ, अभी कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, डू इट नाउ। ओके, नाउ आई लाइक टू आस्क समवन एल्स। ओके, कमला जी, हैव यू डन सम होमवर्क? Yes, sir. Present yourself, what you've done in homework. What have you done in homework? क्या क्या किया सर आपने? आई एम होम का तो ये दिखा रहा है मैं घर पर हूँ, और आई एम एट होम का दिखा रहा है मैं घर में हूँ। मैंने पूछा क्या क्वेश्चन, मैंने पूछा है कि क्या दोनों सही हैं, आई आस्क दिस। यस,
सर कमला आई एम जी। होम का मतलब तो ये हो गया ना, मैं घर हूँ। हाँ तो कुछ भी हो, आप नहीं समझ रहे क्वेश्चन क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या दोनों कहा जा सकता है। हिंदी से मतलब नहीं है, आप मुझे हिंदी बता रहे हो, मैं इंग्लिश पूछ रहा हूँ कि क्या हाँ सर, दोनों दोनों साथ। कहा जा सकता है। हाँ, हाँ मुझे सर, हिंदी से। मुझे लगता है दोनों कहा जा यस, सकता है। कॉन्टेक्स्ट अलग अलग, मुझे कॉन्टेक्स्ट से मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ग्रामेटिकली सही है या नहीं। ग्रामेटिकली बोथ आर करेक्ट। हाँ, अब कॉन्टेक्स्ट से बात कर लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट अतुल जी ने समझा ही दिया है कंप्लीटली, मेरा मेरा कहना भी वही है। और अब देखो मैं थोड़ा सा अलग ऐड कर देता हूँ। अतुल जी ने समझाया कि ठीक है, एक लोकेशन के रूप में बात कर रहे हैं तो आई एम एट होम कह देंगे। जनरली बात कर रहे हैं मैं घर, जैसे एक होता है ना हिंदी में बोलते हैं कहाँ हो भाई, घर, मैं घर हूँ, ऐसे। आप अगर वैसे जनरली हिंदी में नहीं होता, लेकिन कोई कभी कभी बोल देते हैं मैं घर हूँ, कहाँ हो। जैसे एक होता है बुंदेलखंडी में बोलते हैं यहाँ पे, हम घरे हैं, हम घरे। अतुल जी आपके इधर बोला जाता है ये, हम घरे हैं, है ना। हम घरे मतलब हम घर हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो आप ज्यादा बेटर रिलेट कर पा रहे होंगे इससे। तो वहां पर इसका मतलब है आई एम होम। ठीक है। यस। तो आई एम होम हो गया। और बोलते हैं मैं घर पे हूँ, हम घर पर हैं भैया। अच्छा कहाँ आना, हम घर पे हैं। अच्छा ठीक है। तो वहां पर पर्टिकुलरली आप आई एम एट होम लगाओगे। कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात की, प्लेस की बात की, यानी कि लोकेशन मतलब प्लेस हो गया। जब मैंने कहा प्लेस हो गया यानी कि नाउन हो गया हूँ। तो मैं क्या अलग बता रहा हूँ, बाकी तो सेम ही है जो अतुल जी ने बताया। बट अलग ये है कि यहाँ पर वो नाउन के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, और जो हमने वो समझा था नाउन के कॉन्टेक्स्ट में आया तो एट लगा दिया। अभी प्रियांशी जी से समझा था मैंने। और जब वो आया एडवर्ब के कॉन्टेक्स्ट में, तब लगा दिया हमने कोई भी प्रेपोजिशन नहीं, नो प्रेपोजिशन। गॉट इट। तो ये चीज है। तो दो कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो गए। तो यस, बोथ आर करेक्ट, बोथ इज नहीं होता प्रियांशी जी, बोथ आर करेक्ट, राइट। आई एम होम मीन्स आई हैव जस्ट रीच्ड होम, सो हेयर इट्स करेक्ट। if I am already at home, so I am isn't correct here. हाँ, I am at isn't correct, क्या क्या कह दिया आपने, समझ में नहीं आया। प्रियांशी जी एलाबरेट, एलाबरेट प्रियांशी जी। कहाँ गई प्रियांशी जी, वेयर आर यू प्रियांशी मैम, वेयर आर यू। She's gone somewhere, she left. Okay, she's No, here. no, sir, I'm here. Yes. I'm actually connecting my cable to the charger. Okay. तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जब बात करी दो कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो गए, तो उसमें हमने अलग अलग ले लिया। ठीक है। तो अभी आपसे और बात कर लेते हैं इस पे। टर्न ऑन कैमरा, Here you ज्ञान, use ज्ञान प्रकाश जी टर्न ऑन कैमरा, सुरजीत जी टर्न ऑन कैमरा, अतुल जी, कमला जी एंड उत्कर्ष, प्रतीक्षा, कीर्ति जी, सुहानी जी, सभी लोग कैमरा ऑन कीजिए। यूजर आईडी से कौन आया है भाई, कैमरा ऑन कीजिए, नाम लिख के आया कीजिए। अच्छा, यूजर आईडी से आप आए। हाँ अभिषेक जी, यू वर आस्किंग समथिंग। here you are using one word elaborate. What is the meaning of elaborate? व्याख्या करना, बताना, डिस्क्राइब करना, एलाबरेट, एलाबरेट। व्याख्या कीजिए, Elaborate. बताइए, विस्तार दीजिए। ठीक है। ओके। सो पूछ लिया हमने आपसे, और किसी से बात करते हैं इसी टॉपिक पे। सर, यस विष्णु जी। elaborate और brief, they both are different, sir, और ये same meaning? it depends on the context we are using in. वैसे दोनों को अगर हम बात करें तो दोनों यूज कर लेते हैं किसी को डिस्क्राइब कराने के लिए। लेकिन जनरली जब हम कहते हैं ना ब्रीफ, ब्रीफ योर सेल्फ, No, तो हम वहाँ चाहते हैं कि संक्षिप्त उत्तर मिल जाए हमें। ब्रीफ मतलब हम चाहते हैं yes, कि ज्यादा बड़ा, बहुत इतना लंबा चौड़ा उत्तर नहीं चाह रहे हम। चाह रहे हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत आंसर मिल जाए और हम उससे साथ जाएं। और एलाबरेट मतलब हम चाहते हैं अच्छे से व्याख्या मिल जाए हमें। तो ये होता है। और जनरली आप कभी कभी इसे भी कह सकते हैं कि उसकी जगह पे बोला जा सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट बात हो, ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना हो, तो वहां पर हम ब्रीफ यूज कर लेते हैं, ब्रीफ योर सेल्फ, है ना। तो ऐसे मतलब सर elaborate एक तरह से ऐसे की तरह है, मतलब उसमें 2 पेज लिखो और brief में 1 पेज लिखो, एलाबरेट एक तरह कहते ऐसा हैं है ना? एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है। आप हाँ एंटोनिम कह सकते हैं इसको। और क्योंकि वो डिटेल में हो गया और ये ब्रीफ मतलब हो गया, अगर हिंदी बोलूँ तो संक्षिप्त होगा शायद इसका। ब्रीफ संक्षिप्त हिंदी इसकी की सही होगी। कीर्ति जी यहाँ पे है क्या, उनकी हिंदी अच्छी है। संक्षिप्त मतलब क्या yes, होता sir. है, संक्षिप्त मतलब Yes, क्या होता sir. है अपना कब। संक्षिप्त अपना मतलब इंट्रोडक्शन छोटे, ये दोनों अपोजिट ले सकते हैं हम। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में बताना, आप इसको बहुत बड़ा करके मत बताओ, छोटे में बता दो। हाँ हाँ एंड बिल्कुल सही। एलेबरेट
हिंदी में लिखो, विस्तार से बताओ। बिल्कुल। विस्तार, एक हो गया विस्तार और एक हो गया संक्षिप्त, बिल्कुल सही। तो अगर आपको पर्सनैलिटी से कहना है कि भाई बता दो मुझे, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, हमें ज्यादा रामायण नहीं सुननी, तो बोलेंगे ब्रीफ योर सेल्फ। और जब कह रहे हैं कि भाई डिटेल में बताओ, मुझे तो अभी डिटेल में चाहिए था, प्रैक्टिस चल रहा है, तो आई वुड से एलोबरेट। क्लियर? हाँ, एंटोनिम हम कह सकते हैं इसको। विष्णु जी। सर वी कैन इलेबरेट की जगह पे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। एक्सप्लेन कर नहीं, इन्होंने डिफरेंस पूछा था ब्रीफ और उसके बीच में, एलोबरेट के बीच में। यस। अभिषेक जी ने पूछा था एलोबरेट का मीनिंग, तो मैंने बताया था एक्सप्लेन, या फिर एक्सप्लेन इन डिटेल, या डिस्क्राइब, वो सब सिनोनिम उसके हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये एंटोनिम के रूप में आप ले सकते हो इसको, क्योंकि वो एक लंबा चौड़ा व्याख्यान और एक छोटा सा। ठीक है, संक्षिप्त में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऑल राइट। तो हमने कर लिया ये। होमवर्क दो हो गए हमारे, होम वाला, और एक और कम्युनिकेट विद, और एक और मैं इसमें पूछना चाहता हूँ। मैं सेटिस्फाइड था इनके एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रियांशी जी। एक बार और देखता हूँ कि आप लोगों में से और कितने लोग इसको कर पाएंगे अच्छे से। ज्ञान प्रकाश जी, आपने लेट ज्वाइन किया है। डिड यू कंप्लीट दिस होमवर्क? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉक टू एंड टॉक विद? टॉक टू टॉक विद वाला नहीं किया था मैंने, वो किया था होम वाला दिया था आपने कल, और उसके अलावा डिड कम्युनिकेट एनीवन वाला था। एल्स, हाँ, डिड एनीवन एल्स कंप्लीट दिस वर्क, टॉक टू एंड टॉक विद? प्रियांशी जी एंड सावित्री जी के अलावा, एक्सेप्ट प्रियांशी जी एंड सावित्री जी, किसी और ने कंप्लीट किया? प्रेजेंट करे। नो वन। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ब्रेवो, ब्रेवो। तो यस। सर सर मैंने निकाला था टाक टू में, जब हम वन वे कन्वर्सेशन होती है, जब कोई एक बात कहता है, जैसे अब टीचर्स बच्चों को गाइड करे, उस पर टीचर आ रहा है जो बच्चों को गाइड करे। टाक विद में जब दोनों के आइडियाज शेयर होते हैं, वाओ, वंडरफुल। ओके, लेट मी नो कि ऊपर मेरा जो प्रेजेंट कंटेंट दोनों डिलीवरी आए। सेशन है, जनरली कंटेंट डिलीवरी सेशन है, स्टार्टिंग से अगर देखोगे, तो उसके लिए मैं क्या बोलूं? मैं बोलूं आई एम टॉकिंग टू यू, या फिर मैं बोलूं आई एम टॉकिंग विद यू, कंटेंट डिलीवरी सेशन में? सर टॉकिंग टू आएगा, क्योंकि और सर मेरा उसमें जो आप प्रैक्टिस बात सेशन, कर रहे हो, हाँ, और मेरा जो उसमें प्रैक्टिस टाक सेशन है विद उसमें, आएगा, तो उसमें विद आएगा। अच्छा, अब मान लो प्रैक्टिस सेशन में टाक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बस मुझे सुनो ध्यान से और आंसर करना, रिपीट करना। और आप लोग क्या कर रहे हो कि बस आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शन को सुन के आप लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में। तो मैं बस रिपीट, मैं बोल रहा हूँ कि बस आप टाइप करते जाओ, और उसके बाद मैं बस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, सुनते जाओ और लिखते जाओ। तो यहाँ पे क्या टॉकिंग टू यू करूँ, या फिर सर इस क्या पे करूँ? टॉकिंग टू आएगा। ओके। अच्छा, मैं आपसे जब बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आईड लाइक टू टॉक कम्युनिकेट विद, मैं इसका यूज, अब ये तो मेरी आदत में आ गया है, मैं कम्युनिकेट विद कर रहा हूँ। तो इसके पीछे कोई कहानी रही होगी, या मेरे मुंह से ऐसे निकल गया? मैं प्रैक्टिस में कह रहा हूँ कि नाउ आईड लाइक टू कम्युनिकेट विद, तो यहाँ पर ये सर क्यों निकल रहा? हम्म। सर कम्युनिकेट विद में मतलब दो लोग इंटरेक्ट करें ना सर, आप हमारे साथ इंटरेक्ट करें ना प्रैक्टिस सेशन में। यस। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मान लो मैं वीडियो से पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने वीडियो भेजा आपको, तो मैं वहां पे क्या बोलूंगा? आई लव टू कम्युनिकेट टू यू, या फिर आई लव लव टू टॉक कम्युनिकेट? कम्युनिकेट टू आएगा उसमें सर, ठीक है, क्योंकि सर चलो। उसमें सिर्फ आप बात कर रहे हो। बढ़िया। ठीक है, अब हम इसको और गहरा, और कोई बताना चाहेगा कोई पॉइंट, और अगर किसी का कोई और डिफरेंट वे में बताया ऐसे, तो फिर हम बात करते हैं। और एनीवन एल्स? अमारजा जी, आप बताएंगे या फिर सेटिस्फाइड है? आर यू सेटिस्फाइड, और यू हैव नॉट डन द होमवर्क? प्रतीक्षा जी, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? सुरजीत जी, आपने किया वर्क किया? हैव यू कंप्लीटेड? अमारजा जी, आर यू देयर? हम्म। ठीक है। सर आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर, और एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू पुट ऑन दीज वर्क? कनेक्शन इज I ब्रेक। got ठीक है, network issue, so I नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, मैं ब्रीफ कर देता हूँ उसे। जगताप जी, मैंने यूज कर लिया आपका वर्ड, ब्रीफ कर देता हूँ उसे। तो हमने समझा कि आई एम, यस, आई एम होम और आई एम एट होम दोनों करेक्ट है। आई गो टू होम में आई गो होम करते हैं जनरली हम। और जब नाउन ग्रुप में आएगा तो वहां पर हो जाता है
टू होम, बट जनरली आप गो होम ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे माई वगैरह आ गया, जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो तब हम वहां पर टू लगाते हैं। वैसे आई गो टू होम नहीं करते, आई गो होम करते हैं, क्योंकि वहां क्लियर नहीं हो रहा। और जब क्लियर हो रहा है कि प्लेस पे ही बात कर रहे हैं, डायरेक्शन में बात हो रही है, डायरेक्शन, तो वहां पर गो टू होम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट जनरल टर्म में आप होम ही करोगे, गो होम। तो अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमने बात करी टॉक टू और टॉक विद। जब किसी एक पर्सनैलिटी को हम बोल रहे होते हैं, वो बस सुन रहा होता है, तो टॉक टू कर लेते हैं। और जब किसी पर्सनैलिटी के साथ इंगेज होकर बात कर रहे होते हैं तो टॉक विद करते हैं। इसी तरह कम्युनिकेट इसका सिनोनिम ही होता है। तो कम्युनिकेट में भी कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, किसी तक सूचना पहुंचानी है, तो कम्युनिकेट टू केवल सूचना पहुंचाई, सूचना पहुंचानी नहीं है, सूचना के पहुंचाने के बाद प्रतिक्रिया भी पानी है, ठीक है, बातचीत करनी है, एंगेज होना है, तो कम्युनिकेट विद आ जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। तो शॉर्ट में हमने समझ मतलब लिया। तो यस। जो अभी हम कर रहे हैं वो टॉक विथ हो रहा है, हाँ, अगर आप राइट? प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी के साथ, तो आई एम कम्युनिकेटिंग विद हिम, आई एम कम्युनिकेटिंग विद हर। ओके। अब कम्युनिकेट से मुझे ओके। याद आया, आई हैव क्रिएटेड अ क्लब फॉर यू, बट यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर योर growth. I mean, when those who are active, even they are just completing their reading and recording task. No, 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 this group is not just for reading and recording. Go and read the description. There you can just arrive anytime and you can communicate. I told you some ways, like you can start with this. Hello everyone, I am Justice from Manpuri, or anything. You can just say like this as well if you don't want to tell about your address. Hello everyone, my name is Justice and I'm here to communicate with you. Are you free right now, or are you available right now? If you are available, respond to this voice note. I would love to talk. और वहां पे आप बात करना शुरू कर सकते हो, या आप बोलेंगे हाय एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग, होप यू आर डूइंग फाइन, सो आई एम हियर टू कम्युनिकेट विद यू, आई एम हियर टू प्रैक्टिस माई इंग्लिश विद ऑल ऑफ यू, सो इफ यू आर अवेलेबल काइंडली आंसर मी। तो कोई अवेलेबल होगा तो वहाँ आंसर कर देगा, और नहीं होगा तो कुछ देर बाद आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यूज करना है उसका, ठीक है। इसको मैं पर्सनली आपको बता भी रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने यूज कर करके काफी ज्यादा इंप्रूव की थी। आप अगर प्रीवियस सेशन में आए तो मैंने बताया भी था कि मेरे पास 100 ग्रुप्स हुआ करते थे, और वहां पर मैं इस पे ही दिन भर लगा रहता था पागलों की तरफ। मुझे एक्चुअली में टाइम भी अच्छा मिल गया था, 12th के बाद ही मैंने सीख लिया था, तो इसलिए। तो आप भी कीजिए इसका यूज, ठीक है। और जो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके पास पर्याप्त टाइम है, तो आप लोग अगर अभी करेंगे तो बहुत बेटर है। आप तो पूरे दिन भर लगे रह सकते हो मेरी तरफ, पागलों की तरफ, है ना। जस्ट कहते हैं ना कि समथिंग, व्हेन समथिंग इज लव, देन वी डू नॉट गिव प्रायोरिटी टू एनीथिंग एक्सेप्ट द थिंग विच वी कॉल आवर लव, राइट। जब किसी से प्यार होता है ना, तो सारी चीजें भूल जाते हैं, फिर हमें बस वो प्यार नजर आता है। तो अगर कहते हैं ना, वो जो दुनिया में लोग कहते हैं फॉल इन लव, इफ यू वांट टू फॉल इन लव विद समवन, फॉल इन लव विद इंग्लिश। ओके। इंग्लिश, अब मैं फॉल इन क्यों बोला मैंने, टूटी फूटी इंग्लिश आपको आती है ना, टूटी फूटी इंग्लिश का गिरते पड़ते बोलिए, लेकिन बोलिए। ओके। फॉल इन लव विद इंग्लिश। आर यू रेडी टू फॉल इन लव विद इंग्लिश? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. Yes, we I are have, ready. I, great, Yes, great, sir. great. Okay. So I want you to communicate in that club, speak up club, make that group active. इतना एक्टिव कर दो, इतना एक्टिव कर दो कि जितने बिजी लोग हैं उनको मजबूरन ग्रुप छोड़ना पड़े, ठीक है, या फिर म्यूट पे डालना पड़े। ओके। Okay, ऑल sir. राइट। कम्युनिकेटिंग 24 आवर्स। पता चले किसी का रात को मैसेज आ रहा है, हाय एवरीवन, माय नेम इज जस्टिस, आई एम अनएबल टू स्लीप नाउ, सो आई जस्ट चेक्ड आउट हियर, लाइक are you available so we can communicate? Yes, you can communicate that time as well if someone is available, ठीक है। use your time wisely, ठीक है। ओके। शाइनेस को ऑफ करना है अपने, और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब करते हैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी, किसी से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूट गया हो, मेरा कोई होमवर्क वगैरह वगैरह, तो बता दे मुझे, रिमाइंड करा दे, रिमाइंड मी इफ एनीथिंग इज लेफ्ट। I think other work was about to send in group only, that you have sent, about was about verb. It was about completing the class related work, session related work. So no question. Okay. Sir,
Yes. Please define the definition of adverb. Sorry, sir, you're not audible properly. Come again. Define Sir, adverb. Adverb. Find adverb. Define adverb. अच्छा, If define. हाँ. yeah, Define adverb. Adverb is something which modifies verb. सिंपली लिख लेंगे एक लाइन में, एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, या फिर एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब. एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर दे, वर्ब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दे. जो वर्ब वर्ब तो जानते हैं ना, एक्शन. एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब या मॉडिफाइज वर्ब. जैसे एग्जांपल के लिए, आई टॉक स्लोली, ही रन्स फास्ट, ही विल कम ऑन मंडे, है ना. अब देखिए, जैसे आई टॉक स्लोली मैंने बोला, तो यहां पर टॉक टॉक जो मेरा वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये. स्लोली, टॉक कैसे कर रहे हो, स्लोली कर रहे हो, तो यहां इसने डिस्क्राइब कर दिया पेस को, स्पीड को डिस्क्राइब किया, एडवर्ब ऑफ पेस या स्पीड. और अगर हम बात करें, ही रन्स फास्ट, यहाँ पे भी स्पीड डिस्क्राइब की, वो तेज दौड़ता है. एक और बोला मैंने, आई विल गो ऑन मंडे. अब देखिए, मंडे भी एडवर्ब है यहाँ पे, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. मैं, देखिए, आई विल गो, गो मतलब वर्ब हो गया, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. अच्छा, जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सॉरी कब जा रहे हो, टाइम हो गया, प्लेस नहीं टाइम हो गया, सॉरी. आई विल गो ऑन मंडे, एडवर्ब ऑफ टाइम. मैं जा रहा हूं कब, मंडे को, तो टाइम वाला एडवर्ब हो गया. ठीक है. अब जैसे मैं बोलूं, he आई विल taken the गो class देयर, quickly. आई विल गो देयर. ये देयर जो है क्या है, एक प्लेस, डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहा है ना, या फिर प्लेस की ओर इशारा करेगा. तो देयर, THERE, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन. तो जो भी वर्ड हमारे वर्ब को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ब. इसलिए इसका नाम एड और वर्ब लगा हुआ है. एडजस्टमेंट विद वर्ब, ट्रिक याद कर लीजिए, एडजस्टमेंट विद वर्ब. ठीक है. एडवर्ब मतलब एडजस्टमेंट विद वर्ब. फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म अगर आप कहें कि ये फुल फॉर्म है क्या, नहीं नहीं, फुल फॉर्म नहीं है, ट्रिक ऐसी बनाई है मैंने, अपनी बनाई, अपनी इजाद की हुई ट्रिक थी ये. क्यों भूल जाते थे डेफिनेशन बचपन में. तो एडजस्टमेंट विद वर्ब, एडवर्ब मतलब एड से एडजस्टमेंट याद रहेगा, वर्ब से वर्ब याद रहेगा, तो वर्ब के साथ एडजस्ट करता है ये. ठीक है. तो एडजस्टमेंट विद वर्ब. ठीक है. तो मैं देखो कोशिश करूंगा आपको सर भेज दूं पोस्टर. यस, बताइए. सर जो कल का होमवर्क है सर, थोड़ा सा समझाएंगे जिसका मतलब टॉक टू और टॉक विद वाला, मतलब समझ नहीं आया मुझे. टॉक टू मी और टॉक विद नहीं आया समझ में. एक मिनट दीजिएगा मुझे. आई वुड वांट अतुल जी काइंडली एक्सप्लेन दिस. टॉक टू एंड टॉक विद समझ में नहीं आया है. सर टॉक टू, सर कम फॉर्मल होता है, और टॉक विद जो है वो ज्यादा फॉर्मल होता है, ये पढ़ा था मैंने. और मतलब और टॉक टू जो है वो वन वे होता है, और टॉक विद जो है हम किसी के साथ में टू वे कन्वर्सेशन होती है, उसके लिए यूज करते हैं. क्या फॉर्मल क्या इनफॉर्मल बताया आपने. टॉक टू जो है वो कम फॉर्मल माना जाता है, और टॉक विद जो है वो ज्यादा फॉर्मल माना जाता ओके. दूसरा आंसर बताइए. Excuse me, sir. नॉट है. दिस सर वन. दूसरे, जो टॉक टॉक Excuse टू me, जो sir. है वो ठीक है, छोड़िए. Sir, excuse me, sir. Can I tell? Doctor talk to patient. Is this correct or not? डॉक्टर टॉक टू पेशेंट, और टॉक टू या विद कुछ नहीं लगाया आपने इसमें. मैंने यूज किया डॉक्टर टॉक टू पेशेंट. नो, डॉक्टर टॉक्ड विद पेशेंट. सर वो तो एक ही पर्सन हुआ ना सर. कि हाँ, मान तो एक लीजिए पर्सन अगर हुआ तो मैंने क्या हो कुछ. गया. ये एक पर्सन की बात ही नहीं थी, आप कंफ्यूज हो गए. एक पर्सन की बात नहीं हो रही, ये बात ऐसी हो रही है कि हम एक तरफ से बात कर रहे हैं और सामने वाले को सुन नहीं रहे हैं. लेकिन वो तो सुन रहे हैं ना, उनके साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अच्छे से, कि बताओ हाँ अब क्या प्रॉब्लम, आप लाभ मिला या नहीं मिला, अच्छा और बताओ और क्या हुआ. मतलब ये डोज लिया था टाइम पे नहीं लिया था, फिर कैसा फील कर रहे हो अभी, रिलीफ मिला नहीं मिला. तो वहां तो वो टॉकिंग विद हो रहा है ना. टॉक टू में सिंगल पर्सन सिर्फ अपनी वर्ड्स बोलेगा, वो सुनेगा नहीं. वेयर हम लोग देयर वी हाँ. देयर यस. वी यूज टॉक टू. हाँ, एंड फर्स्ट व्हेन पर्सन. एवरीवन इंगेज
engage there then we use एंगेज। talk with. हाँ, एंगेज कर रहा है तो Okay, टॉक okay. विद। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो विष्णु जी, अगर एंगेज कर रहे हो आप किसी को तो टॉक विद है, किसी मतलब उसका भी सुन रहे हो, अपने ही नहीं बोले जा रहे हो। ठीक है। जैसे खड़ूस टीचर, खड़ूस टीचर के लिए क्या बोलोगे, टॉक टू या टॉक विद? Talk to. टॉक टू। और फैंटास्टिक टीचर लाइक मी? Talk with. Okay. ओके, ठीक है। ये तो आप खुद लोग ही तारीफ out. करते नहीं हो तो मैं क्या सोच रहा हूँ, खुद ही अपनी तारीफ करने लगूँ। ठीक है। सर ओके, जोक्स मतलब टॉक अपार्ट। टू मतलब ये हाँ, टॉक टू मतलब सर टॉक टू तो मतलब कि जिसमें अपना इंटरेस्ट नहीं आ रहा कम्युनिकेशन अपना बोले जा रहे सामने हो, वाला सुन नहीं का। रहे हो। हाँ, अपना बोले जा रहे हो, खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैं तो करता हूँ, मैं बहुत ही आत्ममुग्ध आदमी हूँ, ईगोइस्टिक। हाँ, तो आप बताइए कि क्या बोल रहे हैं, खुद का बोल रहे हैं, दूसरे का सुन नहीं रहे हैं विष्णु जी, खुद का बोल रहे हैं। यस सर खुद का हाँ दूसरा मतलब उसके जो सामने वाला उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा मतलब अपन हाँ, मैच ये भी नहीं बोल कर सकते पा हैं, रहे अगर हैं। इज्जत नहीं कर रहे हैं तब भी। लेकिन कभी भी होता है ना कि हम अपना बोलना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, चले जाते हैं। जैसे एक खड़ूस बॉस आएगा और बस अपना बोल के चला जाएगा कि ये काम नहीं हुआ, कंप्लीट इट बाय टुमारो, दैट इज द डेडलाइन। अब आप उनको कुछ बोल नहीं सकते यस नो के अलावा। राइट। तो वहां पे टॉक टू होता है। राइट। कोई अगर स्पीकर यस आया सर। और उन्होंने बोला, स्पीच दी, तो वो बोलेंगे आई लास्ट टाइम आई कम्युनिकेटेड टू यू ऑन दैट टॉपिक। तो वो उन्होंने डिलीवर किया और चले गए, तो वहाँ कम्युनिकेटेड टू, टॉकिंग टू। ठीक है। जैसे एक हिंदी में लेते हैं तो मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, हिंदी में तो दोनों वे में यूज कर लेते हैं, टॉक टू कर लेते हैं। आपसे बात करता हूँ से के रूप में, तो वहां पर इसको कहते हैं आई एम टॉकिंग टू यू। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इत्मीनान से आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आई एम टॉकिंग विद यू। ठीक है। इंग्लिश में कॉन्टेक्ट समझ लें, यस कॉन्टेक्ट समझ लीजिए, हिंदी में ज्यादा परेशान मत होइए, हिंदी में तो ऐसे चलता रहता है वो। ठीक है। सर। हम्म। सर टॉक टू की जगह कम्युनिकेट टू भी लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। ओके। कन्वर्स, कन्वर्स भी एक वर्ड है, कन्वर्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्स? कोई बताएगा? कन्वर्सेशन सुना है, कन्वर्सेशन? कन्वर्सेशन सर्च कीजिए यस गूगल सर। पे, कन्वर्स का मीनिंग। कन्वर्ट्स कन्वर्सेशन में बातचीत करना होता है सर। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, जब आप किससे बातचीत करते हैं। Opposite कर converse. Converse means opposite. कन्वर्स मीन्स अपोजिट। आप लोग सर्च कीजिए गूगल पे, कन्वर्स का मीनिंग। Converse आप पढ़ेंगे ना theorems सी of ओ converse एन होता वी है। ई आर एस ऐसी ई, एस ई, यस। सी ओ एन वी ई आर एस ई, कन्वर्स। सर्च इट। टू ठीक है। टॉक टू समबडी। हाँ, विरोधी यस। सर विरोधी। दैट्स ग्रेट। ठीक है। तो ये आपके, ये भी आपका सिनोनिम है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए, कन्वर्सेशन उसी से बना है, कन्वर्स से ही बना है कन्वर्सेशन। यस, करेक्ट। कंजर्वेशन क्यों लिखा है आपने? कंजर्वेशन नहीं, कंजर्व नहीं बोला मैंने, कंजर्व नहीं बोला मैंने, कन्वर्स। ठीक है। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए, घटनाएं, तभी मजा आता है क्लास में। जब तक क्लास में, इंग्लिश के क्लास में गलतियां ना हो ना, तब तक मजा नहीं आता। राइट। ओके। ओके, नाउ एनी एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट। हम्म। अब आपको एक जोक बताता हूँ, याद आ गया मुझे। गलतियां ऐसी भी होती हैं। जैसे टीचर ने पूछा कि मैं खाना पकाता हूँ। बच्चे ने बोला आई एम फूड कुक, आई एम फूड कुक। मैं खाना हूँ, पकाता हूँ। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, तभी मजा भी आएगा। चलिए, अब हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाइए सभी लोग। Getting. हम बाजार जा चुके हैं, हम बाजार जा चुके हैं, कमेंट सेक्शन में एक्टिव। हम बाजार जा चुके हैं। अमरजा जी, कीर्ति जी, प्रतीक्षा जी, सुहानी गावले जी, ज्ञान प्रकाश जी, आप लोग सो रहे हैं मुझे पता है, आप लोग कैमरा ऑन नहीं किए हुए हैं।
उठ जाइए बिस्तर से एंड कैमरा ऑन कीजिए। आई हैड, वाओ, हैड लगा दिया। अभिषेक जी आपने हैड क्यों लगाया सर? हैज लगाया सर, बाय मिस्टेक हो गया वो है, ठीक है। हैज को हेड लिख गया वो। और आई नहीं करना, हमने कहा हम की बात करी थी, हम की बात की, वे वी आर गॉन लगा रहे हैं। वी हैव गॉन टू द मार्केट, यस, वेरी वेरी गुड। अच्छा, अब बताइए, हम बाजार नहीं जा चुके हैं। तो शॉर्ट में कीजिएगा। हैवंट यू, लिसन टू माई वर्ड। अच्छा, वी हैव, वी हैव, वी हैवंट और गॉन हेवन टू टू जाएगा मार्केट, ना। यस, यस, वी हैवंट गॉन टू द मार्केट आएगा। कमला जी गो लगाया आपने, थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए, भेजा है मैंने। वी हैवंट गॉन टू मार्केट या वी हैवंट गॉन टू द मार्केट, यस, या वी एंट भी बोल सकते हैं, वी एंट गॉन टू द मार्केट। सर एंट भी लगा सकते हैं क्या? एंट, एंट लगा सकते हैं। एंट बताया था ना, हैज, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, और हैज नॉट, और हैव नॉट। ठीक है, एंट भी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अब कीजिए, क्या हम बाजार जा चुके हैं? प्रतीक्षा जी, कमला जी, अमरजा जी, सुहानी गावली जी, आप लोग उठे नहीं बिस्तर से? हैवंट यू गॉट अप फ्रॉम योर बेड? Sir, my phone is not working properly, so I am unable to write message. ओके, हैव वी गॉन टू द मार्केट, करेक्ट। Sir, can I ask you one question? कुड आई आस्क यू वन क्वेश्चन? Okay. Sir, ये जो is the word gonna, Gonna, gonna is correct? गौना यहाँ पे करेक्ट नहीं है, गौना वहां पे करेक्ट है जहाँ पे आईएनजी के साथ आता है, जैसे आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोना प्ले, आई एम गोना प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोना प्ले बोल सकते हैं। गोइंग, गोइंग टू की जगह आता है वो। एक आने वाले टाइम में बताऊंगा, अभी रहने दो इसे। अभी बहुत सारे टॉपिक है इसमें जिसमें तो गौना कैन वाना क्यों सब आया, पढ़ेंगे। कुड क्यों, सॉरी, कैन क्यों नहीं आया, कुड क्यों आया? कुड इसलिए आया क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेनर हूँ, और आप मुझे थोड़ा तो रिस्पेक्ट दे दो भाई। कैन मैं बोल सकता हूँ आपसे, मैं बोल सकता हूँ कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इट इज ओके, समझाया था प्रीवियस क्लास में मैंने शायद। कुड का यूज करते हैं जब हम तो किसी कुड, हाँ, फॉर्मल जो होता है वो कुड होता है, और कैन जो होता है इनफॉर्मल होता है। वो या तो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या फ्रेंकली हैं किसी से, तो उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, या कोई छोटा है तो आप उससे बात